Hello, welcome to Textbook Platform. This is Priyanka, your educator. And so finally, Karnataka set answer key is out now, and it's time to challenge the question. And I collected so many questions from students, like which should be challenged or not, ma'am. So in this lecture, I will discuss each and every question that कौन सा challenge करना चाहिए या कौन सा challenge नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आपके डाउट है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले अपने आज के सेशन में. Okay, let's start. The first question is regarding banking in India. This question should be challenged 100% because Bank of Calcutta was renamed as Bank of Bengal in 1809. Okay, in 1809. So here the answer is given option number 1, 2 and 4, which is not correct. 1 to 4 किसी भी कीमत पर हमारा सही नहीं होगा क्योंकि only option number 1 and 2 is correct, not option number 3 and 4. In option number 3rd there should be 1917 and in option number 14 there should be 1809. तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 100% आपका चैलेंज होना चाहिए और इसमें आपको मार्क्स भी जरूर मिल जाएंगे. तो ये क्वेश्चन आप 100% चैलेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. As per the Karnataka set answer key, the given answer is need to gain economies of scale. Economies of scale means what? That the higher unit of production at lower cost. It is called economies of scale. So indirectly or directly this is the part of can be derived from the globalization, but immigration control cannot be directly derived. So according to me the answer should be option number D. But as per the Karnataka set answer key, it is given option number B. So I think this question should be challenged. You can cross verify once and then you can challenge the questions. Okay, तो इमिग्रेशन कंट्रोल मेरे ख्याल से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिकॉज ये कहीं से भी डायरेक्टली डेराइव्ड मुझे नहीं दिख रहा है. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का असर जरूर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन पर अगर हम लोग जब जाते हैं एज पर द वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिल्कुल हमारा लार्ज होता ही है, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज करते ही है, तो ये चीज तो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं. तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जीएसटी विच इज नॉट कंट्रीब्यूट ओवरऑल रेवेन्यू अंडर जीएसटी. सो ये आपके डाउट क्वेश्चन है विच आई गेट फ्रॉम यू. The answer should be option number B and given answer is also option number B. So no need to challenge this question. Okay, just leave it. The next question is share in the profit in the form of taxable in the hand of partner under the head. The share in the profit of the firm is taxable in the hand of partner under which head? So actually में the share of the profit is exempted from the tax. It is not taxable. So the correct answer should be option number A. And as per the Karnataka set answer key, actual answer is also A. So no need to challenge this question. Okay, just leave it. Next question is regarding the revenue concept. Yes, अगर आपको याद होगा तो we will discuss this question regarding the कि only one या only 1 and 2 ही यहाँ पे correct हमारे बैठ रहे हैं. तो losses, the compensation received from the loss of capital assets is not revenue. So option number 1 is 100% correct answer. तो the correct answer is option number 1. एंड जो आंसर के सेट ने दिया वो भी ऑप्शन नंबर 1 है. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है. यू कैन लीव दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट इज नेगेटिव इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट जो आपकी प्रॉफिट है वो किस केस में नेगेटिव होती है. नेगेटिव मीन्स व्हाट कि नेगेटिव प्रॉफिट इज नेगेटिव मीन्स व्हाट. इट मीन्स दैट इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, है ना. इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस. ये नहीं कह रहा है कि प्रॉफिट कम हो गई है. प्रॉफिट कम मीन्स व्हाट, प्रॉफिट रिड्यूस, है ना. द हेयर क्वेश्चन इज कि प्रॉफिट नेगेटिव है. प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब कि आपके एक्सपेंसेस जो है, आपके एक्सपेंसेस मोर देन इनकम. अगर आपका प्रॉफिट किसको हम लोग कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं कि अगर आपका इनकम मोर देन एक्सपेंस होगा तो इट इज प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट नेगेटिव कब होगा, जब आपके एक्सपेंसेस मोर देन इनकम हो जाएंगे. तो ये किस केस में होता है, ये ऑलवेज आपका इंट्रोडक्शन केस में होता है. अगर यहां पर ये गिवन होता कि प्रॉफिट रिड्यूस्ड, है ना, प्रॉफिट रिड्यूस्ड, अगर ये वर्ड लिखा होता देन द करेक्ट आंसर विल बी डिक्लाइनिंग स्टेज. गॉट द पॉइंट. तो आंसर सी है और बिल्कुल सही है, चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका हम लोगों ने करेक्ट आंसर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 1 दिया था और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी है. ठीक है, ये आपका D1 जो हमारा सेट है उसके मैं आपको आंसर की बता रही हूँ. मे बी यू हैव A1, B1 और C1. यू कैन मैच योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर और
एज पर द पैसेज एंड क्वेश्चन, सो आप उससे मैच कर सकते हो. बट मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो D1 सेट के हैं, तो क्वेश्चन नंबर मे बी चेंज इन योर आंसर की. सो प्लीज यू कैन चेक वंस एंड देन यू कैन फाइल द चैलेंज. ओके. अनदर थिंग इज लाइक कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले और मैंने उसको क्रॉस चेक किया. मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे और स्टिल अगर आपको भी कोई और क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन शेयर मी ऑन माई टेलीग्राम ID. ओके, हियर इज माई टेलीग्राम ID @Priyanka Ma'am Textbook. You can share me your doubt question. I can again रीचेक और रिव्यू. अभी तक मुझे जो भी क्वेश्चंस मिले थे वो ये सारे क्वेश्चंस मिले थे जिसको मैंने ओवरव्यू किया, मैंने अगेन क्रॉस चेक किया और उसके अकॉर्डिंग दो ही क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं. एक ग्लोबलाइजेशन वन, द फर्स्ट वन इज बैंकिंग एंड द सेकंड वन इज ग्लोबलाइजेशन. तो दिस टू क्वेश्चन यू कैन चैलेंज एग्जैक्टली. एंड द मेजर component of logistic is material management and physical distribution. So it is also 100% correct answer. No need to challenge this question also. Okay, got the point? Okay, thank you so much. Bye bye, take care.